Dear students, welcome back, and now it's chapter number 9 of your English reader. Chapter name is For the Love of Nature. So students, in this chapter we are going to read and learn about the importance of our nature, trees around us. We learn about the importance of trees also, which makes the air clean, which provides us oxygen and many other useful things. So it is a story about the chapter is about Shekhar Datri. He is an award winning wildlife filmmaker. So it is just like a story presenting here his interview. So what he said in his interview, they have presented us here in the chapter. So now see the section 1. Before that, we'll start with the introduction of Shekhar Datri. Shekhar Datri is an award-winning wildlife filmmaker, conservationist, and co-founder of Conservation India. So शेखर दात्री इज़ एन अवार्ड विनिंग वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, मतलब वो एक फिल्म बनाता है वाइल्ड लाइफ पर. वाइल्ड लाइफ मीन्स जो एनिमल्स जो आपके फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं. ही इज़ अ कंजर्वेटिवेशनिस्ट ऑल्सो. सो कंजर्वेशनिस्ट हेयर मीन्स समवन हु वर्क्स टू सेव नेचर. सो ही इज़ also working to save the nature, and he is co-founder of Conservation India. In this interview he talks about his work, India's natural wealth, the need and ways to preserve it. So in his interview he has explained us the importance of natural wealth which India is having, and to preserve it, the different ways he has showed us to preserve it. Preserve it means bachana. Now with the section number 1, could you tell us how you became interested in wildlife photography, filmmaking and conservation? So this was the very first question which was being put to Shekhar. So he answered, I was very attracted to nature even as a child. तो जब वो बच्चा था तभी से उनको नेचर से बहुत प्यार था. Our small garden was home to a variety of creatures such as palm squirrels and rose-ringed parakeets, and it was fun to watch them. कहते हमारा एक छोटा सा गार्डन था घर में, और उस घर में बहुत सारे लोगों का वो बहुत सारे क्रिएचर्स, बहुत सारे जीव जंतुओं का वो घर था, और उनमें कुछ उसने नाम दिए जैसे कि स्क्विरल है, गिलहरी जिसको आप बोलते हो, एंड रोज़ रिंग्ड पैराकीट्स. पैराकीट्स आपके पैरट्स की तरह होते हैं कि वो वहाँ पर रहते थे. एंड इट वॉज़ फन टू वॉच देम, और जब वो उन्हें देखता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था. When I was 10, my sister introduced me to book by Gerald Durrell. सो बोलते जब मैं 10 साल का था मेरी सिस्टर ने मुझे एक बुक दी, और वो राइटर जो थे उसके वो थे गैरल्ड डोरल, विच चेंज्ड माई लाइफ फॉर एवर, जिससे मेरी कहते हैं ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई. दीज एंड बुक्स बाय अदर नेचुरलिस्ट सच एज कोनार्ड लॉरेंस, George Scaler and Jane Goodall taught me how to observe and study the creatures around me unobtrusively. So he just explained that many other books were also there. One book was given by his sister, and there were other books also who was written by different writers. So they all taught him टू हाउ टू ऑब्ज़र्व एंड स्टडी द क्रिएचर्स. जो अलग अलग जानवर में दिखते हैं हमें, उन्हें कैसे स्टडी करना है, उन्हें कैसे देखना है, परखना है अराउंड मी एंड अनऑब्ट्रेसिवली, और बिना कोई उनको पहचान दिए कि मैं वहाँ पर हूँ. अननोटिसेबल होने के बाद उनको कैसे उन सब चीज़ों को देखते भी रहना है लेकिन उनको पता भी नहीं लगने देना है. सो व्हेन आई वाज 13, I became fascinated by snakes and other reptiles during a visit to the snake park in Chennai. कहते जब मैं 13 years का था, मैं बोलता
बहुत स्नेक्स को, रेप्टाइल्स यानी जितनी भी रेंगने वाली जो चीज़ें थी, एक बार जब मैं चेन्नई में गया तो स्नेक पार्क में जब मैं गया तो मैं उनका फ़ैन हो गया। आई देन बिगेन स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माई वीकेंड्स देयर्स एंड वॉज लकी टू बी एक्सेप्टेड एज ए वॉल्टियर। कहते उसके बाद तो क्योंकि मुझे अच्छा लगा उन स्नेक्स को देखकर और रेप्टाइल्स को, फिर उसके बाद तो कहते मैं अपने हर वीकेंड्स पर जब भी उसको ऑफ होता था, छुट्टी होती थी, तब वो वहाँ पर चला जाता था। और वो बहुत लकी अपने आप को महसूस कर रहा है कि जब उसको एक वॉलंटियर की तरह भी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। वॉलंटियर मतलब जो अपने आप से ही अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते हैं और उस काम के साथ जुड़ जाते हैं। सो अराउंड द सेम टाइम अ फ्रेंड वॉज काइंड enough to lend me his expensive camera, and I began photographing nature in and around the city। कहते उसी समय में मैं और ज़्यादा लकी हो गया जब मेरे एक दोस्त ने अपना बहुत महंगा सा कैमरा मुझे दे दिया फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए, और मैंने जो नेचर की जो फ़ोटोग्राफ़ी थी और सिटी की फ़ोटोग्राफ़ी को स्टार्ट कर दिया, फ़ोटोज़ खींचनी उसकी शुरू कर दी। सम ईयर्स लेटर आई गॉट अ चांस टू असिस्ट अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर फ्रॉम द USA इन मेकिंग अ फिल्म ऑन स्नेक बाइट। कहते उसके कुछ टाइम बाद में मुझे एक चांस मिला कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बना सकूं। डॉक्यूमेंट्री एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक फ़िल्म होती है जिससे कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो वो कहता है USA के कोई एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर थे, उनको मुझे असिस्ट मतलब उनको हेल्प करने का मुझे मौका मिला। सो दिस स्पार्क्ड माई इंटरेस्ट इन फिल्म मेकिंग। और जो फिल्म थी वो थी स्नेक बाइट के ऊपर, यानी जो सांप काटता है। कहते ये जो स्पार्क्ड थी, दिस स्पार्क्ड माई इंटरेस्ट, इसने मेरे को, कहते हैं ना स्पार्क होता है चिंगारी, इसने तो कहते हैं मेरा जो इंटरेस्ट था उसको एक चिंगारी दे दी इन फिल्म मेकिंग एंड लेड टू अ फुल टाइम करियर एज अ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर। कहते शुरू में तो सिर्फ उनको मैं असिस्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, पर बाद में मैं अपने आप में ही एक फुल टाइम करियर मैंने उसको अपना मान लिया और मैं एक फिल्म मेकर बन गया। फॉर ओवर अ डिकेड आई मेड फिल्म्स ऑन नेचर। कहते उसकी काफ़ी सालों तक मैंने फिल्म बनाई नेचर के ऊपर फॉर इंटरनेशनल टेलीविज़न चैनल्स। आई थॉरोली इंजॉयड एंड फिल्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम टाइगर्स टू टर्टल्स। कहते थॉरोली इंजॉयड ट्रैवलिंग, और मैं जगह जगह हर देश के हर कोने में गया और वहाँ पर मैंने देखा, फिल्म बनाई हर तरह के जंगली जानवर की, टाइगर से लेके टर्टल यानी कि कछुए तक। However, the conservation of wildlife has always been close to my heart। फिर भी कहते जो कंजर्वेशन यानी कि बचाना, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, बचाना, वो मेरे हमेशा दिल के पास था। सो आई डिसाइडेड टू यूज़ माई स्किल्स एज अ फिल्म मेकर टू ऑल्सो मेक फिल्म्स ऑन प्रेसिंग कंजर्वेशन इश्यूज़। कहते इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हुनर को, स्किल हेयर मीन्स हुनर, अपने हुनर को यूज़ करूँगा फिल्म मेकर की तरह भी, और उस तरह की फिल्म भी बनाऊँगा जिससे कि मैं इन वाइल्ड लाइफ को बचाने का इशू जो है उसको रेज कर सकूं। फॉर मैनी ईयर्स नाउ आई हैव बीन वर्किंग क्लोजली विद अदर कंजर्वेशनिस्ट टू प्रोड्यूस शॉर्ट वेल सर्च्ड फिल्म्स दैट ग्राफिकली portray a conservation issues and offer practical solutions to resolve the problem। कहते हैं और तब से मैं आई हैव बीन वर्किंग क्लोजली, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज होकर, बहुत ज़्यादा नज़दीक जाकर बाकी अदर जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनके साथ में मिलकर शॉर्ट और वेल सर्च्ड फिल्म्स को बनाता हूँ दैट ग्राफिकली पोर्ट्रे, और जिसमें ज़्यादातर दिखाया जाता है कि कैसे उनको, इन जंगली जानवरों को हम बचा सकते हैं, और कई बार हम इनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी अपनी फिल्म्स के थ्रू देते हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है। Now these films are then shown to government officials as well as to members of the public to create awareness and bring about a positive change। कहते फिर ये जो फिल्म्स हैं हम जब बना लेते हैं, प्रॉब्लम्स को भी रेज़ करते हैं, उनका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देते हैं, और कैसे इन जंगली जानवरों को बचाना उसका भी सुझाव देते हैं। तो ये जो फिल्म्स होती हैं फिर हम अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिखाते हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, और फिर कुछ पब्लिक के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी दिखाते हैं ताकि वो लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ा सके एंड ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज।
और लोगों में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन टू कंट्रीब्यूट टू कंजर्व इन दिस मैनर। कहते ये मुझे और सेटिस्फेक्शन देता है टू कंट्रीब्यूट करने में, सहयोग देने में, कि कंजर्वेशन इन दिस मैनर, इस तरह से भी मैं कंजर्व कर सकता हूँ नेचर को, लोगों को जागरूक करके, इसकी मुझे ये प्रेरणा देता है। सो स्टूडेंट्स, होप you have understood this section. So in next video we'll read the next section of this chapter. Thank you.